आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने बीदर का किया दौरा, मीडिया कर्मियों से की बात, सरकार के विभिन्न योजनाओं का किया उल्लेख। वीके इंटरनेशनल कॉलेज बीदर के अध्यक्ष वैजनाथ कमठाने को सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी मालवा ने प्रदान की डॉक्टरेट की डिग्री। महाराष्ट्र के यवतमाल में गहरे नाले में समा गई बस, एक की हुई मौत, ड्राइवर कंडक्टर की तलाश तेज। पीएम मोदी ने कृषि जगत को दिया बड़ा तोहफा, देश को समर्पित की 35 फसलों की खास किस्में। दिल्ली के मंडोली जेल में 25 कैदियों ने दीवार पर सिर पटक पटक कर किया खुद को जख्मी। पाकिस्तान में बेरोजगारी चरम पर, चपरासी के एक पद के लिए आए 15 लाख से ज्यादा आवेदन। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने बीदर के अपने कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार अच्छा काम कर रही है और मुख्यमंत्री ने किसानों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, अमृत योजना और दूसरे योजनाओं को शुरू किया है। इस अवसर पर प्रभु चौहान ने हावेरी उपचुनाव के संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि हावेरी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस चुनाव में हमारी ही जीत होगी। इसके अलावा प्रभु चौहान ने दूसरी योजनाओं के संबंध में बताया। मಳೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ಈ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ಮಷಿನರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ। ಈ ಮೂರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತಿ ಅವರು ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ನೋಡ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು। ಮಲ್ತಾ ಬಿಲ್ತಾ ಏನಿಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಗುರುಗಳೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾವು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಓಕೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಕೆಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದನೇಗಾಂವ್ ನದಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಂದಗೂಳ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹೋಗಿ ಬಂದೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ಮಾಂಜರಾ ನದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಮಿಂದ ಕಂದಗೂಳ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಭಾತ್ ಮಳೆ ಆಗಿ ಭಾತ್ ನೀರು ಹೋಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಡಿಸಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಪತ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹನಗಲ್ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಾ ಇವತ್ತು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನಾ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಣಯ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್, ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 6 ಕೋಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಭರೋಸಾ ಇದೆ, 100% ಭರೋಸಾ ಇದೆ। 2 ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಲೀಡನ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಕೋವಿಡ್ ಆಗಲಿ, ಬೆಳೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಈ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನಾ ರೈತರ ಮನೆ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನಾ ಗರೀಬ್ ಹದಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ 100% ಭರೋಸಾಗೆ ಯಾಡಬಿ ತಾಲೂಕಾ ನಾವೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ। क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने आज बीदर में गौड़ी अट्टी शेखर के विधानसभा में क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर आपत्ति जताते हुए अंबेडकर सर्कल से डीसी ऑफिस तक विरोध रैली निकाली। डीसी ऑफिस पहुंचकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा। क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने केपी न्यूज के संवाददाता अजहर और कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए कहा कि अगर गौड़ी अट्टी शेखर ने विधानसभा में क्रिश्चियन समाज के लोगों से माफी नहीं मांगी तो वो लोग राज्य के 224 विधानसभा क्षेत्रों में मौजूद क्रिश्चियन समाज के लोग गौड़ी शेखर के घर के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। महासभा से आज धरने रख लिए हम लोग। गौड़ी अट्टी शेखर असेंबली में क्रिश्चियन लोगों को बहुत कुछ गलती बात की है उन्होंने। क्रिश्चियन लोग मतांतर करते, उनको पैसा देते। अरे भाई, हमारे पास पैसा कहाँ से आता है? पैसा नहीं आता, बाहर से पैसा आता है। केंद्र सरकार में आपके सरकार है, स्टेट में सरकार है, आपका पैसा कहाँ से आ रहा? अरे भाई, पहले समझो, आप एमएलए हो, एमएलए कैसे आता? बोला कैसा एमएलए बने आप? पर सोचो तुम, क्रिश्चियन को फॉरेन फंड नहीं है, फॉरेन में मशीन में नहीं है प्रिंट का। पहले सोचो तुम, पैसा कहाँ से आ रहा है? किसको भी हम लोग मतांतर के वास्ते पैसे नहीं दे रहे। उनका मन है भाई। आर्टिकल पढ़ो तुम, बाबा साहेब अम्बेडकर अच्छा हमारे वास्ते, देश के वास्ते अच्छा एक एक्ट लिखा है।
एक्ट पढ़ो, तुम एक्ट पढ़ो। वो एक्ट में क्या बोलता है 22 में, कहाँ भी कौन सा जात भी कहाँ भी जा सकता है। आप कौन हो पूछने वाले? रिक्वेस्ट है, आपको पूछने चाहते हो ये वो आप क्या बात किया असेंबली में, वापिस ले लो। ये बहुत गलत बात है। ये इंडिया में सारे मुल्क है, सारे मुल्क सब जात का है। ये आपका जात, ये बाप का जात नहीं, आपके गुत्ती ने लिया। भारत देश 1947 में सब जात मिलके हम लोग करे सो। महात्मा गांधी जी बहुत कुछ लोग थे, आप ही एक ही हिंदू लोग नहीं थे, सारे मुस्लिम हिंदू का बहुत कुछ ज्यादा लोग थे उस टाइम में। हम लोग सब मिलके बात किए, जब फाइट किए सो अभी आजाद मिले हमारे को। अब कौन वाले पूछने वाले? इसलिए ये माध्यम मुखांतर मैं पूछता हूँ, अब क्या भी बोले वापिस ले लो, नहीं तो कर्नाटक राज्य तुम हम फाइट करने वाले। जय हिंद। येसुदास अखिल भारत क्रिश्चियन महासभा बीदर जिला घटक प्रेसिडेंट। आज बहुत बड़ा दुखकार का संगति, क्रिश्चियन समाज देश का जो कोड़गे देने वाले समाज है, आज ऐसे समाज के ऊपर एक गोलीयटी शक्कर बोलने वाला शासक समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगाने का कोशिश करा है। मैं आज गोलीयटी शक्कर को ये वार्निंग देना चाहता हूँ, ये जो दो विधानसभा में जो गोलीयटी शक्कर तू जो बोला है, ये बात तू विधानसभा में हमारे समाज को माफी मांगना चाहिए। अगर तू माफी नहीं मांगा तो 224 विधानसभा क्षेत्र में हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के कितने भी संगठन है, वो पूरे संगठन को लेके तेरे घर के सामने स्ट्राइक करने का हम प्लान करे हैं। मैं तुम्हारे तरफ से, मैं आज मीडिया के तरफ से, मैं केपीएन न्यूज के तरफ से मैं आज उसको वार्निंग देना बोलता हूँ। 224 विधानसभा क्षेत्र में हमारे लोगों को, मैं पूरे एमएलए को भी मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, 224 विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी हमारे कम्युनिटी के लोगों को अगर तकलीफ हुआ, वहाँ पर हम वही क्षेत्र के एमएलए को पकड़ दे। अगली बार आने वाले दिनों में एक बार हमारे क्षेत्र में, कौन से भी क्षेत्र में हमारे लोगों को अगर कहीं भी तकलीफ हुआ, कहीं भी चर्च पे दाढ़ी हुआ, कहीं भी पास्टर के ऊपर मारामारी हुई, तो हम वो शासक को पकड़ते हैं। क्यों बोले तो शासक जो है वो हमारा वोट लेता है यहाँ पर। पूरे बाकी के जितने भी शासक एमएलए रहते हैं, वो पूरे एमएलए मिलके वो आदमी को भ्रष्टाचार डालना चाहिए, उसके ऊपर केस डालना चाहिए, उसका शासक मित्र उसके स्थान से उसको वजह खोलना चाहिए, उसको डिफिटेड करना चाहिए उसको। मैं आपके चैनल के मुखांतर से बोलना चाहता हूँ राज्यपाल को और माननीय मुख्यमंत्री को, इमीडिएट उसके शासक स्थान को रिजाइन देना चाहिए उन्हें। क्यों बोले तो अपनी कम्युनिटी, हम कोई कम्युनिटी को हम जाके हमारे क्रिश्चियन हो बोल के नहीं बोलते, हम हमारे लोगों के तरफ से ये लोग जीत रहे हैं। आने वाले दिनों में एक बार अगर हमारे लोगों को अगर कहीं भी बाल के उतना भी अगर धक्का हुआ, तो आने वाले दिनों में हम माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय राज्यपाल को हम सीधा इसका होनेगार उठाने के लिए हम उनको ब्लेम करते हैं। विधानसभा में गोलीयटी शक्कर जिस दिन तक माफी नहीं मांगता, उस दिन तक ये होराटा निरंतर वाग रहता बोल के तुम्हारे मुखातर में बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम संजय जागीरदार, इंडियन क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट। बीदर के प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज जो 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है, जहां हर वर्ष 1600 विद्यार्थी कामयाब होकर निकलते हैं। वीके इंटरनेशनल बीदर के अध्यक्ष वैजनाथ कमठाने को उनकी शैक्षणिक सेवाओं को देखते हुए सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ऑफ मालवा की ओर से डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई है। इस संबंध में वीके इंटरनेशनल कॉलेज के स्टाफ ने वैजनाथ कमठाने को डॉक्टरेट की डिग्री मिलने पर उन्हें बधाई दी और उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर वैजनाथ कमठाने ने केपी न्यूज के संवाददाता अजहर और कैमरामैन साबिर खान से बात करते हुए इसका विवरण किया है। मेरा नाम वैजनाथ कमठाने, प्रेसिडेंट ऑफ बसव तत्व एजुकेशन सोसाइटी बीदर, और मैं इस इंस्टीट्यूशन कम से कम 40 साल से मैं ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, और इसमें बहुत से 1600 बच्चे हर साल पढ़ के बाहर जा रहे हैं, बड़े बड़े नौकरी पर भी चले गए हैं, और हम विद्यादान और फ्री हॉस्टल चला रहे हैं और फ्री एजुकेशन भी दिला रहे हैं। और इस सभी काम देखकर मुझे सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ऑफ मालवा, इन्होंने मेरा रिकॉर्ड्स देख के मुझे डॉक्टरेट पदवी को सिलेक्ट किया है। इस सिलेक्ट करने से मेरे को बहुत खुशी हो गया, और मैं ऐसा प्रोग्राम कभी भी नहीं देखा। और इस प्रोग्राम गोवा में अरेंजमेंट था, गोवा में मैं जाके 25 तारीख को 11 बजे मैंने डॉक्टरेट पदवी हासिल किया। उस पदवी देने के लिए गेस्ट महाराष्ट्र से बहुत से लोग आए थे, और उसमें डॉक्टर अशोक कुमार गौरवेट आए थे। महाराष्ट्र के विश्वविद्यालय के सभी गेस्ट डॉक्टरेट पदवी लिए सो लोग मुझे ऑनर करके सर्टिफिकेट दे के कर्नाटका स्टेट से मुझे अकेले को मिला है ये डॉक्टरेट पदवी। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए मैं चाहता हूँ, और भगवान मुझे शक्ति देने दो। और अभी सभी संपर्क सभी लोगों का ये दुआ से
मुझे ये प्रशस्ति मिला है। मेरे को ये डॉक्टर गौरव पदवी मिलने से पूरे मैं बीदर जिले के और जनता के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तेलंगाना में रह रहे मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति से जुड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस की इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए एमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि मुसलमान आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में करीब 12.8% मुस्लिम बसते हैं। उनकी आर्थिक हालत पहले की तुलना में बिगड़ी है। शिक्षा, सेहत, आवास, रोजगार में सबसे पिछड़े हैं। राज्य के मुसलमानों को राज्य में दलितों के समान अभाव का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुसलमानों दलितों के समान सरकारी समर्थन नहीं मिल रहा है। ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने हाल ही में एक क्रांतिकारी दलित बंधु योजना की शुरुआत की है। ये देश का सबसे बड़ा कैश ट्रांसफर प्रोग्राम है। ओवैसी ने इस योजना को सीएम केसीआर का दूरदर्शी कदम बताया। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है। यवतमाल में भारी बारिश के बीच सड़क के ऊपर से बह रहे पानी के बीच संतुलन खो बैठी बस गहरे नाले में समा गई। इस बस में कुल 6 लोग सवार थे और उनमें से एक की इस हादसे में मौत हो गई और 2 को बचा लिया गया। ये बस नांदेड़ से पुसद होकर नागपुर जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सड़क पर पानी भर जाने से ड्राइवर अंदाजा नहीं लगा पाया। सड़क पर बहते पानी के बीच वाहनों का आवागमन बंद सा था, लेकिन ड्राइवर ने सड़क पार करने का फैसला किया। हालांकि कुछ मीटर चलने के बाद ही बस का पहिया सड़क के नीचे चला गया और कुछ सेकंड में ही बस पलट गई और सड़क के बगल नाले में समा गई। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी सितंबर के महीने में ज्यादा बारिश देखने को मिली है। पिछले कुछ महीनों के दौरान पहाड़ी इलाकों में कई भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के कृषि जगत को बड़ा तोहफा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 35 नई फसलों की वैरायटी देश को समर्पित की है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस फसल की जुताई जितनी गहरी होगी, उस फसल की पैदावार उतनी ही बढ़िया होगी। इसके साथ पीएम ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इस महत्वपूर्ण कृषि कार्यक्रम की जानकारी दी थी। अपने वर्चुअल संवाद में पीएम ने बताया कि इन नई फसलों की वैरायटी को ICAR ने काफी रिसर्च के बाद तैयार किया है। इन नई फसलों के जरिए जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के प्रभाव को कम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पीएम कई तरह की फसलों की सौगात देश को देने जा रहे हैं। इस लिस्ट में चने की ऐसी फसल भी रहने वाली है जो आसानी से सूखे की मार झेल सकती है। इस अखिल भारतीय कार्यक्रम का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र मिलकर कर रहे हैं। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में फायरिंग की घटना के बाद से जेलों में बंद गैंगस्टरों के बीच गैंगवार छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। गैंगवार की आशंकाओं को देखते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन अलर्ट पर है। इस बीच सोमवार को दिल्ली में मंडोली जेल में खून खराबा हुआ। बीती रात जेल में बंद कैदियों ने खुद को चोटिल कर लिया। इन कैदियों की संख्या 25 बताई जा रही है। कैदियों ने दीवार पर अपने सिर पटक पटक कर खुद को घायल कर लिया। जानकारी के मुताबिक ये घटना सोमवार शाम की है। जेल नंबर 11 के अंदर ये घटना हुई है। कैदियों के इस तरह से हंगामा करने के बाद एक कैदी को अस्पताल भेजा गया। हालांकि बाद में उसे अस्पताल से वापस जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कैदियों के बीच बने गुटों को गैंगस्टरों से दूर रखने के लिए सुरक्षा कारणों की वजह से सेल के अंदर ही रहने के लिए कहा गया था। इस बात से कैदी गुस्सा हो गए और अपने सिर दीवारों पर मार कर घायल कर दिया। कुछ ने तेज धारदार चीज से खुद को घायल किया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया गया। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट, बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड आमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला का अनजान पुरुष से बात करना भारी पड़ गया। शख्स से बात करते हुए महिला के ससुर वालों ने देख लिया और उसे पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। घटना रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र में 17 सितंबर को हुई, लेकिन इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पाकिस्तान की इमरान खान हुकूमत लोगों को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। इस समय वहाँ बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ हाईकोर्ट में चपरासी के एक पद के लिए 15 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। बीते सोमवार को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 16% तक पहुँच गई है, जो इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार के 6.5% के दावे की पोल खोल रही है। यमन में बढ़ रही गरीबी और मुद्रा में हो रही गिरावट की वजह से जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। यमन के तीसरे सबसे बड़े शहर लाइज में सोमवार को प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाई। गोलियां चलने से मची अफरा तफरी में 7 लोग घायल हुए हैं। गीतकार जावेद अख्तर द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की
तुलना तालिबान से करने का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। महाराष्ट्र में जावेद अख्तर के खिलाफ आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने एक दीवानी मुकदमा दायर किया है। ये केस ठाणे कोर्ट में दाखिल किया गया है, जिसमें कथित तौर पर अख्तर द्वारा संगठन की तुलना तालिबान से करने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने गीतकार जावेद अख्तर को नोटिस भेजा है और 12 नवंबर को मामले की अगली तारीख में पेश होने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र बीजेपी ने जावेद अख्तर के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र एमएलए और बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने ऐलान किया है कि जावेद अख्तर की कोई भी फिल्म को देश में तब तक रिलीज नहीं होने दी जाएगी जब तक कि वो आरएसएस से माफी नहीं मांगते। जावेद अख्तर ने मीडिया के एक इंटरव्यू में कहा था कि तालिबान और जो एक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं के बीच एक वैचारिक समानता है। उनका कहना था कि आरएसएस जो कि बीजेपी का वैचारिक मात्र संगठन है, लंबे समय से ये मानता रहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र या राज्य है। राम कदम ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए चेतावनी दी थी कि अख्तर का ये बयान शर्मनाक है। आज के दिन का इतिहास के साथ बड़ा सुरीला रिश्ता है। आज सुरों की देवी और प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्मदिन है। अपनी मधुर आवाज से पिछले कई दशक से संगीत के खजाने में हर दिन नए मोती भरने वाली लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को इंदौर में मशहूर संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ पैदा हुई थी। लता ने अपनी आवाज और अपनी सुर साधना से बहुत छोटी उम्र में ही गायन में महारत हासिल की और विभिन्न भाषाओं में गीत गाए। पिछली पीढ़ी ने जहां लता की शोक और रुमानी आवाज का लुत्फ उठाया, मौजूदा पीढ़ी उनकी समंदर की तरह ठहरी हुई परिपक्व गायकी को सुनते हुए बड़ी हुई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान ने बीदर का किया दौरा, मीडिया कर्मियों से की बात, सरकार के विभिन्न योजनाओं का किया उल्लेख। वीके इंटरनेशनल कॉलेज बीदर के अध्यक्ष वैजनाथ कमठाने को सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी मालवा ने प्रदान की डॉक्टरेट की डिग्री। महाराष्ट्र के यवतमाल में गहरे नाले में समा गई बस, एक की हुई मौत, ड्राइवर कंडक्टर की तलाश तेज। पीएम मोदी ने कृषि जगत को दिया बड़ा तोहफा, देश को समर्पित की 35 फसलों की खास किस्में। दिल्ली के मंडोली जेल में 25 कैदियों ने दीवार पर सिर पटक पटक कर किया खुद को जख्मी। पाकिस्तान में बेरोजगारी चरम पर, चपरासी के एक पद के लिए आए 15 लाख से ज्यादा आवेदन। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।